Oh, whoever believe in the Holy Spirit, जो कोई पवित्र आत्मा पे विश्वास करता every है, weak person will be strong. हर कमजोर व्यक्ति दृढ़ बन जाए, No more the weakness will reign over you. और कोई कमजोरी तुम्हारे ऊपर राज नहीं God करेगी। want to see you stronger, stronger and stronger. So more than teaching, more than reading about Holy Spirit, experiencing the Holy Spirit is best actually. और सिखाने से ज्यादा, पढ़ने से ज्यादा पवित्र आत्मा का अनुभव लेना ये सबसे उत्तम Why चीज it है। is so? ऐसे क्यों? Why it is so? ऐसे क्यों है? We are living in the days of the Holy Spirit. क्योंकि हम लोग पवित्र आत्मा के दिनों में जी रहे हैं। So people of Israelites were lived in the days of the Father, और इजराइल के लोग पिता के दिनों में जिए, and disciples lived in the days of Jesus. और शिष्य यीशु के समय में जिए, Church is living in the days of the Holy Spirit. और चर्च पवित्र आत्मा के दिनों में जी रहा है। Understood? Hallelujah. So they had a miracles by Father, और पिता के द्वारा उनके ऊपर चमत्कार हुए, and the disciples had a miracles by the Holy Spirit. और शिष्यों By Jesus. के ऊपर यीशु मसीह के द्वारा चमत्कार We हुए, are going to see the miracles by the Holy और Spirit. हम लोग पवित्र आत्मा के द्वारा चमत्कार देखने वाले The हैं। ministry of the Holy Spirit is totally given to the church. और पवित्र आत्मा की सेवकाई पूरी तरह चर्च को दी गई है। Ministry of the Holy Spirit means not only speaking in tongues. पवित्र आत्मा की सेवकाई मतलब सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करना The इतना ही ministry नहीं of the है। Holy Spirit means पवित्र आत्मा की सेवकाई मतलब knowing Jesus better and knowing God better. यीशु को उत्तम रीति से जानना और परमेश्वर को उत्तम रीति से जानना। You're understanding? आमीन। The ministry of the Holy Spirit means पवित्र आत्मा की सेवकाई मतलब He will not teach you the new things. He will teach what is Jesus and who is Father in your life. और वो कोई नई चीजें नहीं सिखाएगा, बल्कि वो इतना ही सिखाएगा कि यीशु कौन है और पिता आपके जीवन में कौन है। So being with Holy Spirit is being with the Trinity of God. और पवित्र आत्मा के साथ रहना मतलब परमेश्वर के त्रैकी के साथ रहना, ऐसा है। So being with Holy Spirit means being in heaven. और पवित्र आत्मा के साथ रहना मतलब स्वर्ग में होने जैसा है। Amen. Hallelujah. In the evil world, in the sinful world, दुष्ट दुनिया we में, will पापी दुनिया experience में God, fellowship of God. हम परमेश्वर के सहवास का अनुभव ले सकते हैं। Hallelujah. So we are going to learn few things about the ministry of the Holy Spirit from the Gospel of Luke. और लूका के शुभ संदेश से हम लोग पवित्र आत्मा के सेवकाई के बारे में कुछ चीजें सीखने वाले So हैं। the Gospel of Luke and the book of Acts that is written by same author. और जो लूक का शुभ संदेश है और जो प्रेरितों के कार्य है वो एक ही लेखक ने लिखे हैं। So the Gospel of Luke and Acts is written by Luke. और लूका का शुभ संदेश और प्रेरितों के कार्य ये लूका ने लिखे हैं। And he is professionally was a doctor. और वो पेशे से वो एक डॉक्टर थे। So when doctor is writing something means he will never write without having evidence. और डॉक्टर जब कुछ लिख रहे हैं तो कोई भी सबूत के बिना वो कुछ भी नहीं लिखेगा। Yes or no? मैन He will find out whether it is true or false and then he will write down. और सही है कि गलत वो ढूंढेगा और उसके बाद वो उसे लिखेगा। In his both books, he has mentioned about the work of the Holy Spirit very highly. और उसके दोनों पुस्तक में उसने पवित्र आत्मा के कार्य को बहुत ही ऊंचाई से उसने The लिखा center है। of the center subject of his writing was the Holy Spirit. और उसके लिखने का केंद्र बिंदु पवित्र आत्मा था। So means that is a very important thing the church should know and the people who believe in God should know the work of the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा का कार्य परमेश्वर के लोग और परमेश्वर के चर्च ने बहुत अच्छी तरह समझने हैं, ये उसका तात्पर्य So we are going to learn from the Gospel of Luke. है। हम लोग लूका के शुभ संदेश से हम लोग सीखने And वाले chapter हैं। 1 to chapter 4 we are going to see what all the ministry the Holy Spirit has done upon the people. और पहले अध्याय से चौथे अध्याय तक हम लोग देखने वाले हैं कि पवित्र आत्मा ने लोगों के ऊपर क्या सेवकाई So किया। on that day if the Holy Spirit was able to do, और उन दिनों में पवित्र आत्मा कर पा रहा था, He is ready to do even today. तो आज भी वो करने के लिए तैयार है। Hallelujah. He is always there to do his ministry. और वो हमेशा उसकी सेवकाई करने के लिए तैयार He is होता ready है। to do upon the church. और वो चर्च के ऊपर करने के लिए तैयार He is होता ready है। to do upon the people who really desire from him. और जो लोग सच में उससे इच्छा रखते हैं उनके ऊपर वो कार्य करने के लिए तैयार होता Do है। you desire the ministry of the Holy Spirit? क्या तुम पवित्र आत्मा के सेवकाई की इच्छा रखते हो? Hallelujah. Luke chapter 1. और हम लोग लूका के पहले अध्याय से शुरुआत So करेंगे। Luke chapter 1, the letter starts about a sad story of priest Zechariah and his family. और लूका का पहला अध्याय याजक जकराया और उसके परिवार के बारे में दुखित
खबर के साथ शुरू होता It है starts about their barrenness. और उनके वांछपना के बारे में उसकी But शुरुआत chapter होती 1 है। verse 6 says like this. लेकिन पहला अध्याय 6 वचन ऐसे They कहता are है, very devoted people. वो बहुत ही एकदम भक्तिपूर्ण They लोग were थे। God fearing people. वो परमेश्वर को डरने वाले लोग They थे। were faithfully serving God. वो परमेश्वर की विश्वास के साथ They सेवा were कर रहे God थे। fearing people. वो परमेश्वर को डरने वाले They were लोग थे। faith people. वो विश्वास के लोग They थे। never failed in serving God. वो परमेश्वर की सेवा करने में कभी भी नाकाम But नहीं हुए still थे। they went into the barrenness. लेकिन फिर भी वो वांछपना में चले गए। Sometimes God allows such things to happen in a praying people life. और कई बार परमेश्वर प्रार्थना करने वाले लोगों के जीवन में ऐसी चीजों होने की अनुमति देता Praying है। people are here. क्या प्रार्थना करने वाले लोग यहाँ पे Sometimes हैं? such things will come. कई बार ऐसी चीजें होती है, God आती allows है। such things to happen. परमेश्वर ऐसी चीजें होने के लिए अनुमति Why do देता He है। allow such things? ऐसी चीजें वो क्यों अनुमति He देता knows है? very cleanly. वो बड़े स्पष्ट रूप से He is जानता है, very sure वो बहुत ही पक्का है that difficulties will never stop you in praying. कि ये कठिनाइयां तुम्हें प्रार्थना में कभी भी रुकेगी नहीं। He is sure that you will never become weak in faith. वो पक्का है कि तुम विश्वास में कभी भी कमजोर नहीं He पड़ोगे। is sure that you will never stop serving God. उसे पक्का है कि तुम परमेश्वर की सेवा करना कभी भी छोड़ोगे नहीं। Very clearly that word says, which really many times I read that scripture. Whenever I read now, it encourages me. और कई बार मैंने ये वचन पढ़ा है, लेकिन जब कभी मैं ये वचन पढ़ता हूँ तो वो मुझे प्रोत्साहन देता है। Please read that word. कृपया वो वचन पढ़ेंगे। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे हाँ। और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। They were both were righteous before God. They were walking, walking with God, obeying all the commands of God. Okay, they were blameless, but still they went through this barrenness. वो परमेश्वर के बहुत ही वो नीतिमान चलने वाले लोग थे, निर्दोष चलने वाले लोग थे और परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाले लोग थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में ये परिस्थिति थी। If we were there, we used to say like this. अगर हम लोग वहां पे होते तो हम लोग ऐसा कहते Why हैं, God allowed these all things for us? परमेश्वर ने ये सारी चीजें मेरे जीवन में क्यों होने That's दी? how we will question God. उसी तरह हम लोग परमेश्वर को सवाल पूछेंगे। True praying people will never question God. जो सच्चे प्रार्थना करने वाले लोग होते हैं वो परमेश्वर को कभी भी सवाल नहीं पूछते। True believers will never question God. सच्चे विश्वासी लोग परमेश्वर को कभी भी सवाल नहीं पूछते। They will never get tired in praying. वो प्रार्थना करने में कभी भी थकते नहीं। They never get tired in believing in God. और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने में वो कभी भी थकते They नहीं। know that God will never let them वो down. जानते हैं कि परमेश्वर उन्हें कभी भी नीचे गिरने नहीं देगा। They continued in the service of God. और वो परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ते They रहते said to हैं। themselves like this. उन्होंने अपने आप से ऐसे Let कहा, whatever people say, लोग कुछ भी कहने दो, we will never shake in our faith. हम हमारे विश्वास में कभी भी नहीं हिलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. We will continue to serve God. This story we read in verse 6. और ये कहानी हम लोग इस छठे वचन में हम लोग पढ़ सकते हैं। Hallelujah. Verse 15 it says like this. और 15 वचन ऐसे कहता है, God visited them. परमेश्वर ने उनको भेंट दिया। God visited them. परमेश्वर ने उनको भेंट God दिया। visited whom? परमेश्वर ने किसको भेंट दिया? God visited the righteous people. परमेश्वर उन नीतिमान लोगों को उनको भेंट God दिया। visited the people who really faithfully serve God. परमेश्वर ने उनको भेंट दिया जो सच में विश्वास के साथ परमेश्वर की सेवा करता। Verse 15 says like this. 15 वचन ऐसे कहता है, God is telling in the vision to Zechariah, परमेश्वर दर्शन में जकराया को ऐसे बोल रहा this है, is what is going to happen to you, Zechariah. जकराया तुम्हारे साथ ये होने वाला I है, am going to answer your prayer. मैं तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर देने वाला Your हूँ। wife is going to bore a son, तुम्हारे पत्नी को एक बेटा होगा and he will be spirit filled. और वो आत्मा से भरा हुआ होगा। Hallelujah. Hallelujah. See, now the Lord is, when the Lord want to bless them, और जब परमेश्वर ने आशीर्वाद करना चाहता था, before this, they physically received the child, उनको बच्चा शारीरिक रूप से मिलने के पहले God is talking about the Holy Spirit work. परमेश्वर पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में बात कर रहा है। Hallelujah. He will be filled by the Spirit of God. परमेश्वर के आत्मा से वो परिपूर्ण हो जाएगा। Hallelujah. From the mother's womb itself, और माँ के गर्भ से ही he उसने will कहा है, experience the power of the Holy और Spirit. वो पवित्र आत्मा के सामर्थ का अनुभव लेगा। Hallelujah. The Lord is telling, प्रभु कह रहा है, one or other day, एक या दूसरे you will दिन experience the anointing of the Holy Spirit upon your तुम life. पवित्र आत्मा के अभिषेक का तुम्हारे जीवन के ऊपर अनुभव लोगे। To answer the question what you have in your mind. जो तुम्हारे मन में सवाल है उसका जवाब देने के लिए। Hallelujah. This Holy Spirit work, definitely the Lord is promising,
it will happen to the ministry, to the ecstasis ministry. और ये पवित्र आत्मा का कार्य प्रभु जरूर कह रहा है कि ये एक्सटासिस मिनिस्ट्री के लिए होगा। Is there blameless people here? क्या यहाँ पे निर्दोष चलने वाले लोग हैं? Righteous people are here? क्या नीतिमान लोग यहाँ God पे हैं? obeying people are here? परमेश्वर की आज्ञा पालन करने वाले लोग And क्या the यहाँ Lord पे is हैं? telling, और प्रभु कह रहा you है will experience a spirit fillness. और तुम आत्मा से परिपूर्ण होने का अनुभव लोगे। You will move by the Holy Spirit. तुम पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य This करोगे। month, this thing will definitely happen. ये महीने में ये चीजें जरूर होंगी Because God desired like that. क्योंकि परमेश्वर ने ऐसी इच्छा Once रखी। again, He wants to fill us with His power. एक बार फिर से वो अपने सामर्थ्य से हमें भरना Once चाहता again, है। He wants to empower us with His Spirit. एक बार फिर से वो अपने आत्मा से हमें सामर्थ्य प्रदान करना चाहता है। Hallelujah. To the blameless people, निर्दोष लोगों to के the लिए, faith people, विश्वास के लोगों के लिए, the people who are serving God, जो लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं to उन लोगों के them, God लिए, wants to give this spiritual experience. उन लोगों को परमेश्वर ये आत्मिक अनुभव देना चाहता है। I really need this और experience. ये अनुभव की मुझे सच में I जरूरत am not है। tired of receiving the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा को पाने में कभी भी थका नहीं हूँ। Hallelujah. Hallelujah. How much more I receive, जितना ज्यादा मैं उसे पाऊंगा, that much more I will know Jesus better. उतना ज्यादा मैं यीशु को अच्छी तरह जानूंगा। Amen. आमेन, आमेन। When Jesus said to His disciples, in John chapter 14, that I am going to heaven. और यीशु ने अपने शिष्यों से यूहन्ना 14 में जब कहा कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ, All the disciples were discouraged तो सारे शिष्य निराश हो गए because they had a very wonderful time with Jesus for 3.5 years. क्योंकि उनका 3.5 साल तक यीशु के साथ बहुत ही अद्भुत समय रहा They witnessed the miracles of Jesus. और उन्होंने यीशु के चमत्कारों की साक्ष्य दी And they have seen that was a wonderful time for them. और उन्होंने तब देखा कि उनके लिए वो बहुत ही अद्भुत समय था। 3.5 years, they felt they are in heaven. 3.5 साल तक उनको लगा कि वो स्वर्ग में है। Walking with Jesus is being in heaven. यीशु के साथ चलना मतलब स्वर्ग Yes. में होना ही है। Hallelujah. Amen. Walking with Jesus, doing the ministry with Jesus, they felt they are in heaven. यीशु के साथ चलना, यीशु के साथ सेवकाई करना, उनको लगा कि वो लोग स्वर्ग में ही Suddenly हैं। one day Jesus said, I am going to heaven. अचानक एक दिन यीशु ने कहा कि मैं स्वर्ग में जा रहा All हूँ were discouraged. और सारे लोग निराश हो गए। In chapter 14 verse 26, Jesus said like और this, 14:26 में यीशु ने ऐसे कहा, when I am taking to heaven, जब मुझे स्वर्ग में ले लिया that time the जाएगा Holy Spirit will come. और उस समय पवित्र आत्मा आएगा He will remind you all what I taught you. और वो जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है वो तुम्हें याद The दिलाएगा। Holy Spirit will come from Father, पवित्र आत्मा पिता से आएगा, teach about me, मेरे बारे में so that you will सिखाएगा understand all things. ताकि तुम सारी चीजों को समझ That जाओगे। is the promise God given to that is the promise Jesus given to the disciples. और ये अभिवचन यीशु ने अपने शिष्यों को दिया। Hallelujah. Though they have experienced Jesus, उन्होंने यीशु का अनुभव जरूर लिया था, they need the outfill of the Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा का उनको परिपूर्ण होने की जरूरत थी। Hallelujah. That's what we see chapter 1 verse 15. और वही हम लोग पहले अध्याय के 15वें वचन में क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा हाँ। और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा हम्म। और अपनी माता के गर्भ ही से हाँ। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा Okay. और इजरायलियों में से हम्म। बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। Hallelujah. So now this is what the angel of God is telling to Zechariah. और परमेश्वर का दूत ये जकरिया से बात कर रहा He है, will be filled by the Holy वो Spirit पवित्र आत्मा के द्वारा परिपूर्ण हो and he will जाएगा move with the anointing of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा के अभिषेक से वो कार्य करेगा and he will move with the spirit of Elijah. और वो एलिजा के आत्मा से वो आगे He बढ़ेगा will move like a prophet. He will move with the anointing of a prophet. और एक नबी के अभिषेक से वो भर जाएगा। The outfilling of the Holy Spirit पवित्र आत्मा का परिपूर्ण होना will lead us into the prophetic moment. वो हमें नबियों के क्षणों में वो ले जाएगा। When you experience the Holy Spirit in you, जब तुम तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा का अनुभव लोगे there will be a prophetic moment upon your life. तो तुम्हारे जीवन के ऊपर नबियों का कार्य होगा। When the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आएगा He will lead us into the prophetic moment. वो हमें नबियों के कार्यों में ले जाएगा। Only Holy Spirit can do that work in us. और सिर्फ पवित्र आत्मा ये वो कार्य हमारे अंदर कर सकता है। That's what the Lord is telling. और यही प्रभु कह When रहा the है, Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आता है the prophetic moment will start within you. तो नबीवानी का कार्य तुम्हारे अंदर शुरू होगा। Though it is individually prophesied about John, और यूहान के बारे में वो भविष्यवाणी दी गई थी, but there is no partiality in Holy Spirit. लेकिन पवित्र आत्मा में कोई भी भेदभाव Holy नहीं है। Spirit can give this experience to everyone. पवित्र आत्मा ये अनुभव हर एक को दे सकता है। So this is what happened in the first chapter. We see
the Spirit of God, what He has done here. और पहले अध्याय में हम लोग देख पाते हैं पवित्र आत्मा ने यहाँ पे क्या किया। Hallelujah. Luke chapter 1 verse 35. लूका पहला अध्याय 35वां वचन हम देखेंगे। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा हाँ। और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। Amen. Hallelujah. So now, another important truth Luke is writing with his experience. और लूक अपने अनुभव से और एक महत्वपूर्ण सत्य यहाँ पे लिख रहा The है। Bible theology says like this. बाइबल थियोलॉजी ऐसे कहती है, Luke went and met Zechariah. Luke went and met Elizabeth. Luke went and met Mary also. और लूक जाके जकराया को मिला, लूक जाके एलिजाबेथ को मिला और लूक जाके मरिया को भी मिला। Means he interviewed them and written that one. इसका मतलब उसने जाके उनसे मुलाकात की और उसके It बाद is ये not चीज an लिखा। imagination. ये कोई कल्पना नहीं He है। personally talked with them. और उसने निजी रूप से उनसे बात He said, किया how was your experience? और उसने पूछा कि तुम्हारा अनुभव कैसे था। Now he finished with Zechariah and Elizabeth. और उसने जकराया और एलिजाबेथ से बात करना खत्म किया Now with Mary. और अब वो मरिया से बात And कर रहा था। he's talking the experience of Mary. और वो मरिया के अनुभव के बारे में यहाँ पे कह And रहा Mary है। said how she had an encounter with the angel of God. और मरिया ने कहा कि परमेश्वर के दूत के साथ वो कैसे उसने सामना And किया। how the angel said to Mary, what message the angel gave to Mary. और उस स्वर्गदूत ने मरिया को क्या संदेश दिया। The angel answered and said like this, और उस स्वर्गदूत ने उत्तर देके ऐसे कहा, you will conceive by the Holy Spirit. तुम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण करोगे। You will conceive by the Holy Spirit. तुम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण करोगे। When the Holy Spirit will come upon और you. जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, When the Holy Spirit power will come upon you. जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तुम्हारे ऊपर You will आएगा conceive. That's what he said. और तुम गर्भ धारण करोगे, ऐसे उसने कहा। Hallelujah. About the birth of Jesus. यीशु मसीह के जन्म के बारे में। Hallelujah. So Pastor Paul Angicho says like this. पास्टर पॉल एंगिचो ऐसा कहते हैं, He said in his preaching like this. उनके प्रचार में उन्होंने ऐसे कहा, Mary conceived Jesus one time. मरिया ने यीशु को एक बार गर्भ धारण But किया, every day I conceive the spiritual things by the Holy Spirit. लेकिन हर दिन मैं आत्मिक चीजों को पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण करता हूँ। Hallelujah. Everything I conceive the spiritual things by the Holy Spirit. और हर आत्मिक चीज मैं पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण करता हूँ। Anybody desire like that? क्या किसी की भी ऐसी इच्छा To है conceive the spiritual things by the Holy Spirit? आत्मिक चीजें पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण करने Oh, की? the Lord is telling like this. प्रभु ऐसे कह रहा When है, you are filled by the Holy जब Spirit, तुम पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाते you हो, will conceive the spiritual तो things. तुम सारे आत्मिक चीजों को गर्भ धारण करते हो। Hallelujah. That's how the ministry of ecstasy has developed. और उसी तरह एक्सटासिस मिनिस्ट्री डेवलप हुई है। One ministry we will be doing एक सेवकाई हम करते हैं, when we are filled by the Holy Spirit. जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते Holy हैं, Spirit will give us a spiritual conviction in us. तब पवित्र आत्मा हमें आत्मिक वो कन्विक्शन को देता है। Sometimes we'll conceive the spiritual thoughts. और कई बार हम उस आत्मिक विचारों को गर्भ धारण What करते the हैं। Holy Spirit is going to do next in the ministry. पवित्र आत्मा सेवकाई में अगला क्या करने वाला Oh, है? when we conceive that one, जब वो उसका हम लोग गर्भ धारण करते oh, I हैं, will speak and tell to the people. तो मैं लोगों से बात करके कहता हूँ, So as I am growing in prayer, जैसे मैं प्रार्थना में बढ़ रहा as I हूँ, am growing in faith, जैसे मैं विश्वास में बढ़ as रहा I am हूँ, continuing in the ministry, जैसे मैं सेवकाई में आगे बढ़ रहा हूँ, oh, the baby grows. तो वो बच्चा बढ़ते जाता है। Hallelujah. Amen. Whatever I am conceived by the Holy Spirit, जिस किसी का मैंने पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण किया after है, few months, कुछ महीनों के we बाद will see that is born. और हम देख पाते हैं कि उसका जन्म हो जाता The Lord is telling, प्रभु कह रहा these है, are the days of the Holy Spirit. और ये दिन पवित्र आत्मा के दिन है। Whoever believe, जो कोई विश्वास they रखता also है, will have the experience of Mary. और उनका भी मरिया की तरह अनुभव रहेगा। आमेन। Hallelujah. You're going to conceive the spiritual things. और तुम आत्मिक चीजों को गर्भ धारण करोगे। Chapter 1, पहला अध्याय 39 to 41. 39 से 41 तक। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर हो गई और जकरया के घर में जाकर एलिशिबा को नमस्कार किया। जो ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना तो ही बच्चा उसके पेट से उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। Amen. Hallelujah.
So what do we see here? तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पाते See, the हैं? Holy Spirit is constantly working on the people. पवित्र आत्मा लगातार लोगों के ऊपर कार्य कर रहा है। See, when the ministry of the Holy Spirit starts, जब पवित्र आत्मा का कार्य शुरू होता it is है, not limited for one person. तो वो कोई एक व्यक्ति के लिए मर्यादित नहीं It होता, will move to the person to person. और वो व्यक्ति से व्यक्ति तक वो Every person घूमते will रहता have a है। different experience. हर एक व्यक्ति का अलग अलग अनुभव रहेगा। Hallelujah. Holy Spirit ministry is not for one person. पवित्र आत्मा का कार्य एक व्यक्ति के लिए नहीं Holy है। Spirit will move to the person to person. पवित्र आत्मा व्यक्ति से व्यक्ति में घूमता है। One day is a Father's Day. और एक दिन पिता का दिन है, One day is a Mother's Day. और एक दिन माँ का दिन है, One day is the Children's Day. और एक दिन बच्चों का दिन One है। day Holy Spirit will work on the father. एक दिन पवित्र आत्मा पिता के ऊपर One कार्य day करेगा, Holy Spirit will work upon the mother. और एक दिन पवित्र आत्मा माँ के ऊपर That कार्य same करेगा, Holy और Spirit वही पवित्र one day आत्मा will work upon the एक children. दिन बच्चों के ऊपर कार्य करेगा। Hallelujah. Amen. The Lord is promising. प्रभु अभिवचन दे रहा Oh, है, 1 week Father will experience a powerful move of the Holy Spirit. और एक हफ्ता पिता को पवित्र आत्मा का पूरी तरह का When कार्य he is उसका when he अनुभव is sharing मिलेगा। his joy, और जब वो अपना आनंद को बांटेगा, mother will have experience. तब माँ को उसका अनुभव When आएगा। mother is sharing her और joy, जब माँ उसको बांटेगी उस the खुशी Holy को, Spirit will work upon the children. तब पवित्र आत्मा बच्चों के ऊपर कार्य करेगा। Hallelujah. Our children also will experience the move of the Holy Spirit. हमारे बच्चे भी पवित्र आत्मा के कार्य का अनुभव लेंगे। Now you see the revival in the family. और अब तुमने देखा कि परिवार में संजीवन आया, Now Elizabeth experienced the revival. और अब एलिजाबेथ ने उस संजीवन का अनुभव लिया, That was the day और वही दिन है Elizabeth had a revival. उस दिन एलिजाबेथ के ऊपर संजीवन उसे मिला। Many of us we are going to see the revival of the Holy Spirit. हम में से कई लोग पवित्र आत्मा के संजीवन को Once देखेंगे। again the Holy Spirit desired like this. एक बार फिर से पवित्र आत्मा ने ऐसी इच्छा रखी, Once again he desired to give the new experience for us. एक बार फिर से उसने ये हमें नया अनुभव लेने का इच्छा रखा है, Hallelujah. That is going to happen surely. और वो जरूर होगा। When you and your family is going to experience the day of the Holy Spirit, जब तुम और तुम्हारा परिवार पवित्र आत्मा के दिनों का अनुभव लेंगे, that day उस दिन will be a great birth for a prophet in your family. तुम्हारे परिवार में एक महान नबी का और महान दिन होगा जन्मने का। That day, a great birth for a prophet in your family. और उस दिन तुम्हारे परिवार में एक महान नबी का जन्म होगा। The Holy Spirit is promising पवित्र आत्मा अभिवचन दे to रहा every है, parent who is blameless, हर एक माता पिता के लिए जो every निर्दोष parent है, who is righteous in the sight of हर God, माता पिता जो परमेश्वर की दृष्टि में नीतिमान every है, parent who is with prayerful हर माता पिता prayerfulness. जो प्रार्थना Now करने the वाले time लोग has हैं, come. अब समय आ चुका My है। spirit will work upon your family. मेरा आत्मा तुम्हारे परिवार के ऊपर कार्य My करेगा, spirit will work upon your children. मेरा आत्मा तुम्हारे बच्चों के ऊपर कार्य करेगा। Now are the days of the Holy Spirit. अब ये दिन पवित्र आत्मा के These दिन are हैं। not the days of the father or the days of son. ये कोई पिता के या बेटे के दिन नहीं है। Now is the days of the Holy अब Spirit. ये दिन पवित्र आत्मा के दिन है। Hallelujah. The Lord is telling, प्रभु कह रहा है, if you are faithful in your prayer, अगर तुम तुम्हारे प्रार्थना में विश्वासु हो, you and your family will experience the move of the तो Holy तुम Spirit. और तुम्हारा परिवार पवित्र आत्मा के कार्य का अनुभव That's लोगे। in chapter 1 we see Luke is writing so many things about the Holy Spirit. और पहले अध्याय में हम लोग देख पाते हैं लूका पवित्र आत्मा के बारे में कई सारी चीजें लिख रहा है। Hallelujah. Chapter 1 verse 67 now. और अब पहला अध्याय 67 वचन हम लोग पढ़ेंगे। So much about the work about the Holy Spirit in one chapter. और एक ही अध्याय में पवित्र आत्मा के बारे में कितनी सारी चीजें हैं। Hallelujah. God is telling to us, परमेश्वर हम सबको we कह रहा है, all will surely experience the ministry of the Holy Spirit. हम सब लोग पवित्र आत्मा के सेवकाई का जरूर अनुभव लेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Now 67. उसका पिता हाँ। जकराया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया हाँ। और भविष्यवाणी करने लगा। Amen. Hallelujah. The Holy Spirit came powerfully upon the Father. और पवित्र आत्मा सामर्थ्यशाली रूप से पिता के ऊपर आया। Now we started to worship God prophetically. और वो परमेश्वर की आराधना भविष्यवाणी के तौर पे करने From लगा। here you see the worship is different, और changed. यहाँ से तुम देख पाते हो अब उसकी आराधना बदल गई। He is worshiping prophetically. और वो नबीवाणी के तौर पे आराधना कर रहा See, था। in this chapter only, इस अध्याय में ही or in the Bible, या बाइबल में we see the spirit-filled worship, हम लोग आत्मा से भरी हुई आराधना देखते हैं। and we see the worship with the truth. और हम लोग सच्चाई से भरी हुई आराधना देखते हैं। Hallelujah. And we see the prophetic worship. और हम लोग नबीवाणी की आराधना देख पाते Holy हैं। Spirit only will lead us into the prophetic worship. और पवित्र आत्मा ही हमें उस नबीवाणी की आराधना में लेके जाता Now है। Zechariah is prophesying
and moving in the worship. और अब जकरयाह भविष्यवाणी करके उस आराधना में जा रहा है Until that time, और उस समय तक he was a doubtful. वो शंका से भरा हुआ Until व्यक्ति that था। time, उस समय तक he was under the punishment of God. वो परमेश्वर के उस पनिशमेंट के नीचे था। Means he was not able to speak. इसका मतलब वो बात नहीं कर पा रहा Because था of unbelief, क्योंकि उस अविश्वास के कारण he couldn't speak. वो बात नहीं कर पाया। But when the Holy Spirit came, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया his tongue was released. उसके जुबान को खाली किया गया And then he started to worship prophetically. और उसके बाद वो नबीवाणी के तौर पे आराधना करने लगा। Hallelujah. Hallelujah. Sometimes you'll sing a song which you do not know. कई बार तुम ऐसे गीत गाओगे जो गाने तुम जानते नहीं हो। Sometimes you'll sing a song which is not your language. कई बार तुम ऐसे गीत गाओगे जो भाषा भी तुम्हें पता नहीं है। Hallelujah. Prophetically you may be speaking in tongues. और अन्य भाषाओं में तुम नबीवाणी के तौर पे तुम गीत गाते रहोगे। Sometimes God will give the groaning of spirit within you. और कई बार आत्मा का कहराना परमेश्वर तुम्हारे अंदर दे देगा। And this particular point is for the worshippers. और ये खास ये जो मुद्दा है ये आराधकों के लिए है। Amen. Amen, amen. This is particular point is for the worshippers in the church. और ये मुद्दा खास जो चर्च में आराधना करते हैं उनके लिए है। There will be a prophecy for the church. और चर्च के लिए भविष्यवाणी होगी। Because we are going to experience the ministry of the Holy Spirit. क्योंकि हम लोग पवित्र आत्मा की सेवकाई का अनुभव लेने वाले हैं। Hallelujah. For all the worship team. सारे आराधकों की Because we are going to celebrate the Holy Spirit. क्योंकि हम पवित्र आत्मा को उत्सव मनाएंगे। Hallelujah. Chapter 1 verse 80. पहला अध्याय 80वां वचन। बढ़ता और आत्मा से बलवंत होता गया और Hallelujah. We are going to be stronger and stronger and stronger in Holy Spirit. हम दृढ़ और दृढ़ और दृढ़ पवित्र आत्मा में बनते जाएंगे। Can I hear amen for that? आमेन। Whoever believe in Holy Spirit. जो कोई पवित्र आत्मा पे विश्वास Whoever रखता believe in है, the gift of the Holy Spirit. जो कोई पवित्र आत्मा के वरदानों पे विश्वास Whoever रखता believe in the है, work of the Holy जो Spirit. कोई पवित्र आत्मा के कार्यों पे विश्वास रखता The है, Lord is telling, प्रभु कह रहा है, God want to make us stronger and stronger. परमेश्वर हमें दृढ़ और दृढ़ बनाना चाहता है। Holy Spirit will give the life. और पवित्र आत्मा जीवन देता है। Oh, whoever believe in the Holy Spirit. जो कोई पवित्र आत्मा पे विश्वास रखता Every है, weak person will be strong. हर कमजोर व्यक्ति दृढ़ बन जाएगा। Oh, the Lord is telling, प्रभु कह रहा है, as we are in the month of the Holy Spirit, जैसे हम लोग पवित्र आत्मा के महीने में हैं, no more the weakness will reign over you. और कोई कमजोरी तुम्हारे ऊपर राज नहीं God करेगी। want to see you stronger, stronger and stronger. परमेश्वर तुम्हें दृढ़ दृढ़ और दृढ़ देखना चाहता Very है। clearly that word says, the child grieve stronger and stronger and stronger. और बड़े स्पष्ट रूप से ये वचन कहता है, वो बालक और दृढ़ बढ़ता गया। Holy Spirit will never keep anybody weak. पवित्र आत्मा किसी को भी कमजोर नहीं रखता। Holy Spirit makes everybody strong. पवित्र आत्मा हर एक को दृढ़ बनाता है। Hallelujah. The Lord is telling, और परमेश्वर the कहे, Holy Spirit will not only revive you, पवित्र आत्मा तुम्हें सिर्फ संजीवन the नहीं Holy देगा। Spirit not only move you forward, पवित्र आत्मा सिर्फ तुम्हें आगे नहीं the बढ़ाएगा। Holy Spirit will not only take you in a prophetic moment, पवित्र आत्मा सिर्फ तुम्हें नबीवाणी के क्षणों में नहीं ले the जाएगा। Holy Spirit will make you stronger and stronger and stronger. बल्कि पवित्र आत्मा तुम्हें दृढ़ बनाता You will be stronger in God. तुम परमेश्वर में और दृढ़ You will be बनोगे। stronger in your prayer. तुम तुम्हारे प्रार्थना में You will be और strong दृढ़ in your बनोगे। faith. तुम्हारे विश्वास में तुम Because और the दृढ़ Holy Spirit बनोगे। will come upon you क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा and make you a strong person. और तुम्हें एक दृढ़ व्यक्ति बनाएगा। Hallelujah. This is what the Lord is promising for all of us. और प्रभु ये हम सब के लिए अभिवचन दे रहा है। As a church, चर्च के तौर we पे are going to move with the power of God. तुम परमेश्वर के सामर्थ्य से आगे बढ़ोगे। Oh, everyone is going to be stronger. हर कोई दृढ़ बनता जाएगा। Hallelujah. Because of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के वजह से He will make us stronger and stronger and वो stronger. हमें दृढ़ बनाएगा। No temptation will fail you. कोई भी लालसा तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होगी। Hallelujah. No opposition can overcome you. और कोई भी विरोध तुम्हारे ऊपर हावी नहीं पाएगा। Because you will be stronger and stronger and क्योंकि stronger. तुम दृढ़ बनते जाओगे। Hallelujah. Amen. Welcome the Holy Spirit every morning. पवित्र आत्मा को हर सुबह उसको आमंत्रित करो। Say to the Holy Spirit like this, पवित्र आत्मा को ऐसे I कहो, will fell in your hands. मैं तुम्हारे हाथों में गिर Holy जाऊंगा। Spirit, I depend on you. पवित्र आत्मा मैं तुझ पे निर्भर Holy रहूंगा। Spirit, you lead me. पवित्र आत्मा तू मुझे मार्गदर्शन I कर। tell you, मैं तुम्हें कहता हूँ, most of you will have a good celebration with the Holy Spirit. तुम में से कई लोग पवित्र आत्मा के साथ एक अच्छा उत्सव बनाओगे। I believe what I preach. और जो मैं प्रचार कर रहा हूँ उसके ऊपर मैं विश्वास Because करता when I am हूँ। praying, क्योंकि जब मैं the प्रार्थना कर Holy रहा Spirit हूँ, told me like this. तब पवित्र आत्मा ने मुझे ऐसे कहा, Say to the church, चर्च को कहो, say to Mumbai church, मुंबई चर्च को say कहो, to the people of God, परमेश्वर के लोगों को कहो, आमेन, say to the faith people, विश्वास के लोगों को कहो,
So many new things you are going to conceive. कई सारी नई चीजों को तुम गर्भ धारण करोगे. Hallelujah. Your children will have the visitation of the Holy Spirit. तुम्हारे बच्चों के ऊपर पवित्र आत्मा की भेंट होगी. Hallelujah. They will rise like a prophets. और वो नबियों की तरह खड़े हो जाएंगे. The Lord is telling like this. प्रभु ऐसे कह रहा है, This month will be the month of the Holy Spirit. ये महीना पवित्र आत्मा का महीना Let us रहेगा. stand on our feet हमारे पैर के ऊपर खड़े हो जाएंगे and give thanks to the Lord for this month. और परमेश्वर को इस महीने के लिए धन्यवाद देंगे. Shall we give thanks to the Lord for this month? क्या इस महीने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे? Raise up your hands and say to God, अपने हाथ ऊपर उठा के परमेश्वर को कहो, Lord, thank you for your word, O God. परमेश्वर तुम्हारे वचन के लिए धन्यवाद. Thank you for the प्रभु. prophetic word, O God. नबीवाणी के वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर. Everybody rise up your voice and say to the Lord. हर कोई अपना आवाज उठाकर परमेश्वर को कहो. Say to God like this. परमेश्वर से ऐसे कहो, God, I believe in your word. परमेश्वर तुम्हारे वचन के ऊपर मैं विश्वास Lord, रखता I हूँ. believe your word is a prophecy for me. प्रभु मैं विश्वास रखता हूँ कि तुम्हारा वचन मेरे लिए Every भविष्यवाणी है. word which comes from God is a prophecy. हर वचन जो परमेश्वर से आता है वो नबीवाणी है. I will see the work of the Holy Spirit upon me. मैं पवित्र आत्मा के कार्य को मेरे ऊपर देखूंगा. I believe in the word of God. मैं परमेश्वर के वचन पे विश्वास I रखता believe in हूँ. the prophecy word of prophetic word of मैं God. परमेश्वर के नबीवाणी के वचन के ऊपर Oh विश्वास Lord, I रखता pray हूँ. all have raised their hands, O God. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जिन सारे लोगों ने अपने हाथ Let ऊपर them उठाए, experience the move of the Holy Spirit. उनको पवित्र आत्मा के कार्य का अनुभव आने दो. As you promised us, O God. जैसे तूने हमें अभिवचन दिया We है प्रभु. believe in the written prophecy of thy word, O God. तुम्हारे वचनों के लिखे हुए नबीवाणी पे हम विश्वास रखते हैं प्रभु.